Okay, students. Auzubillah minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. I hope all the students are present. I believe that everyone will be following the SOPs. If you are having any kind of question, any kind of query, any kind of problem, you can raise your hand, or even you can send me a message and I'll look to it. So today we are going to start our formal lecture about CSS PMS English essay. You might be seeing that I have lots of things to discuss with you. मुझे आपसे आज जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उसमें मुझे आपसे बहुत सी चीज़ें शेयर करनी हैं. CSS या PMS का ऐसे जो है वो one of the most critical problems that the aspirants always face, one of the truly crucial problems. और जैसे कि I have always told most of my students, or rather all of my students, कि CSS के ऐसे के बारे में जो to be very clear, to be very frank, to be very crystal clear, आपको कुछ टेक्निकलिटीज़ जो है वो आपको फॉलो करनी है. तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेक्चर के आज 2 सेशन करेंगे. राइट आफ्टर 35 मिनट्स और 36 मिनट्स आई विल turn the lecture off and repeat it again, and I'll start the meeting again. तो सबसे पहली बात जो आज हम करने जा रहे हैं वो हम एक थोड़ी सी प्लानिंग डिसीजन करेंगे. प्लानिंग डिसीजन मेकिंग इस तरह करेंगे कि हमें कवर अप करना है कि अगरचे आप सब में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स मस्ट हैव अ फुल प्रूफ नॉलेज अबाउट द टेंसेस. ज़्यादातर तलबा को इसका इल्म होगा टेंसेस का, बट बीइंग द टीचर वी नीड टू कवर ऑल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स. हमें बिगिनर से लेके एक्सपर्ट तक हर स्टूडेंट को कवर अप करना है, जिसमें हमें तमाम तलबा को, तमाम तालिब इल्मों को प्रॉपरली हमें टेंसेस भी करवाने हैं. तो before making you know in detail what actually an essay is, although I'm going to give you a little bit overview of how to write an essay, how to start writing the essay on your own, I am going to start it today. But at least a week. Most of the time I prefer a fortnight. I prefer the 15 days time to be covered for the comprising of, for the coverage of tenses. लेकिन as you know, you are CSS aspirants, you need not to cover the tenses in a detailed way. हम एक आपके आइडियाज़, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करवाएंगे. तो एक वीक जो है हम आपकी ग्रामर की फुल प्रूफ जो है वो ग्राउंड मेकिंग करेंगे. फुल प्रूफ ग्राउंड मेकिंग का मतलब मेरा कहने का ये है कि व्हाट इज़ कोहेरेंस एंड कोहेजन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये क्या है और ग्रामर में कैसे लाई जाए. व्हाट इज़ सिंटैक्स, ग्रामर क्या है, इनमें एक्यूरेसी और ब्रिलियंस कैसे लाई जाए. व्हाट इज़ रेलिवेंसी, सिलेबल ओरिएंटेशन, अर्निंग द टॉपिक सेंटेंस. व्हाट इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ CSS essays, grammatic structure, proper syntax, proper structure, flawless grammar, flawless appropriation of the words. ये कुछ बहुत grand aspect होगा. What is a gerund, where to use a gerund, what is a participle, where to use the participle, what is a predicate, how to use the predicate in a sentence, what is a clause, how to make beautiful clauses, what kind of sentences are there, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ये बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप इसमें डेक्स्ट्रस अप्रोच रखें. इसमें आपकी वर्सटाइल, डायनामिक, अपने आप में एक फुल प्रूफ अप्रोच हो. ओनली देन
you can start moving on the track of preparing CSS essay. Unless and until your grammar, your syntax, your proper usage of diction, means thesaurus, synonymous expressions, paragraph building, and simple compound complex structure, making the passive voice, making the direct and indirect speech, how to beautify your essay with moderate use of passive voice, with moderate use of direct and indirect speech depending upon the requirement. So there are lots of concepts to be covered. So at least a week we'll be covering all these things. We'll be devoting all our lectures to only cover the your ground making, to make the solid ground that you will be standing on. After that, we will tell you how to come on the track of writing with creativity, with appropriation, with coherence and cohesion, with relevancy, with CSS tips and techniques orientation, with how much margin you need to give to passive voice, direct, indirect, complex, compound sentences, and many things like that. So at least the coming week will be devoted to make the students, the aspirants who are just the beginner, the students and aspirants who are just the beginner, they will get to know how to start writing in a flawless and impressive, awe-inspiring way, how to become a charismatic writer. Because in the earlier week you must have made various concepts clear with respect to grammar. When your grammar would already have been covered, then your no hiccup, no cliche, no loophole or anomaly or drawback or any kind of lacking will not be there with respect to grammar. The only way forward will be to make you run forward on the proper pattern of English essay. So we will devote 15 days to that. After that we will make you, yes, okay. Okay, so here starts our journey. Here's the journey starts. Here the journey begins. The journey that will lead you to the success of English essay. You know, I would like to tell you, okay, the person who topped in CSS 2019, how many marks did he secure in English essay? This is what we call luck. Or on the other hand, this is what we call the level of difficulty in English essay. He is the topper of English, he is the topper of CSS 2019, but he got 40 marks in essay. He got 40 marks in English composition. Now you can imagine how difficult the checking would have been, how difficult the consistency would have been that a topper is gaining 40 marks in essay. So now you can recognize the difficulty, the requirement, and all the things which are comprising of preparing an essay. And the one more thing, that the person who topped, the guy who topped this 2019, he is not Pakistan educated. His academics have been in America, and his 2 or 3, I hardly know, his 2 or 3 elder brothers are already bureaucrats. So having a foolproof understanding, having a proper background, having a foreign education, all these things made him stand on 40 marks. So right track is necessary, right pattern following is necessary. So today I'm going to give a general idea of what an essay is. You can take a thorough look. Okay, the essay. The word essay literally means textually. There is one thing which is called literal expression, the other is called alliteral expression, contextual expression. मैट्रिक में हम पढ़ते रहे हैं connotative और denotative meaning.
कॉनोटेटिव मीनिंग और डिनोटेटिव मीनिंग। अब लिटरल मीन्स डिनोटेटिव मीनिंग, कॉन्टेक्सचुअल मीन्स कॉनोटेटिव मीनिंग। मिसाल के तौर पर मैं फिक्रा बोलता हूँ कि ही इज़ अ पुअर पर्सन, तो इसमें पुअर लफ्ज़ मैंने यूज़ किया। अब मैं ये भी बोलता हूँ कि माई मैथमेटिक्स इज़ वेरी पुअर। अब दोनों में लफ्ज़ पुअर है लेकिन मीनिंग दोनों में डिफरेंट है। एक में गरीब का मानी आ रहा है, एक में कमज़ोर का मानी आ रहा है। तो जो वो पुअर पर्सन वाला फिक्रा है उसमें मैंने इसका लिटरल मानी यूज़ किया, लिटरल, जो कि कॉनोटेटिव मीनिंग है, सॉरी डिनोटेटिव मीनिंग है। और जो लफ्ज़ मैथमेटिक्स इज़ पुअर उसमें मैंने इसका जो है वो कॉनोटेटिव, अलिटरल, कॉन्टेक्सचुअल मानी पेश किया। मिल्क इज़ रिच इन वाइटामिन्स, माई फादर इज़ अ रिच पर्सन। दोनों में रिच आया लेकिन डिफरेंट एस्पेक्ट से। इसी तरह हम थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स विल बी देयर दैट वी विल डिस्कस। तो ऐसे है क्या? What actually an essay is? The word essay literally means grammatically, the literal meaning is the one which the dictionary gives you. A literal or contextual meaning is the one that you yourself derive with respect to connotations, with respect to requirement, minimal or maximum, meaning assimilation with the other. An attempt, the word essay literally means an attempt, and hence essay is the name given to the form of composition. एक पैकेज है, composition means एक पैकेज है, एक आपके नॉलेज का टेस्ट है, आपकी ग्रामर का टेस्ट है, आपके राइटिंग स्टाइल का टेस्ट है, पैराग्राफ मेकिंग का टेस्ट है, आउटलाइन मेकिंग का टेस्ट है, फ्रेमवर्क मेकिंग का टेस्ट है, एडिफिस बिल्डिंग का, स्ट्रक्चर बिल्डिंग का, डिक्शन का, नॉलेज ऑफ कंटेंट है जिसे आइडियाज़ कहते हैं, आपकी आर्गुमेंटेशन का टेस्ट है, कॉम्पोजिशन, फॉर्म ऑफ कॉम्पोजिशन। इट इज़ द टेस्ट ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। इंग्लिश एसे इज़ द लिटिल बिट टेस्ट ऑफ एवरीथिंग which is a short attempt. Short here means concise and very abridged with dense meaning. Jame. Short attempt here doesn't correspond to less usage of the word, but rather it corresponds to the appropriate and dense appropriation of the word. कितना जामे है, okay? तो क्या है? शॉर्ट अटेम्प्ट ऑन अ गिवन सब्जेक्ट जो आपको लिखने के लिए टॉपिक दिया गया। यूजुअली इट गिव्स डिटेल्स ऑफ नैरेटिव, डिस्क्रिप्शन ऑफ सम सब्जेक्ट। नैरेटिव मीन्स स्टोरी मेकिंग, सांचे में ढालना, जिसे मैंने कहा कि फ्रेमवर्क जैसे हम बिल्डअप करते हैं, जैसे हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, पूरी बिगिनिंग, सेंटर, एंडिंग, स्टार्ट, मिडल एंड द एंड। जब हम ये तीन चीज़ें बनाते हैं तो हम नैरेटिव बिल्ड करते हैं, पूरा मुद्दा सामने रखते हैं, पूरी बात कन्वे करते हैं। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम सब्जेक्ट, ठीक है, वो नैरेटिव फॉर्म में हम डिस्क्राइब करते हैं उस टॉपिक को जो हमसे पूछा है। एंड इंफॉर्मेशन ऑन सम सब्जेक्ट, और जो हमें इंफॉर्मेशन है उस सब्जेक्ट पे, उस पर हम बात करते हैं। तो दिस इज जनरली, दिस इज ओनली generally the definition, a rough definition of what an essay is, what an essay should be, what an essay is all about. Coming next are some of the things which are necessarily to be kept in mind. essay में क्या होना चाहिए जो आपको इतना मुअम्मा खड़ा कर दिया, लेकिन देखिए there will be millions and millions of people who will be having a very thorough understanding, a very profuse expression of English, लेकिन जब लिखने का बात आती है तो इंग्लिश ऐसे इज़ अ वेरी सिस्टमैटिक थिंग। इसमें ये कुछ चीज़ें आपको और आप करनी होती हैं। कंटेंट्स का मतलब बिल्कुल आउटलाइन नहीं है, ये मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगा कि यहाँ पे इंग्लिश ऐसे में क्या क्या चीज़ें आपको लाज़िम व मलज़ूम है पुट करने के लिए, वेदर यू आर राइटिंग द आउटलाइन
or you are making the framework of the whole of the verbs, of the whole of the verbal expression. पूरे का पूरा ऐसा है इंट्रोडक्शन से कंक्लूजन तक, इसमें बॉडी पैराग्राफ, इसमें आउटलाइन, इसमें फ्रेमवर्क, आपकी थीसिस स्टेटमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस, और फिर टॉपिक सेंटेंस मेकिंग ऑफ एवरी पैराग्राफ, हर पैराग्राफ। ये कुछ बातें हैं जो हम कवर करेंगे। कंटेंट्स में मैंने लिखा बैकग्राउंड इन्फो। बैकग्राउंड इन्फो here corresponds to the information, in-depth analysis of the topic of the essay that you are going to attempt. Background info means a foolproof epistemology, a whole understanding building of the topic of the essay. As I told in the earlier demonstration lessons, that essay is all about making proper understanding of what is given and what is required in the sentence of the topic. The topic of the essay, what is written and what is required. On the basis of these two things, you will have to make a background info in your mind here. In your mind here. Okay, what are the parts of paragraph? For sure, the passing percentage, which is outweighing the other formats and templates of writing an essay in last 3 years, is the thesis statement template and format. आजकल जो अब ये जो लड़का जिसने ऐसे टॉप किया है, CSS ऐसे टॉप किया है, उसने भी थीसिस स्टेटमेंट वाला ऐसे लिखा था। तो हाउ टू मेक बैकग्राउंड इन्फो, आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट बैकग्राउंड इन्फो, हाउ टू स्टार्ट पार्ट्स ऑफ द पैराग्राफ। पार्ट्स ऑफ द पैराग्राफ हियर मीन्स कि आपने आउटलाइनिंग कैसे करनी है, आपने थीसिस स्टेटमेंट मेकिंग कैसे करनी है, आपने इंट्रोडक्शन कितना कैसे बिल्ड करना है, कंक्लूजन कितना कैसे किन आइडियाज पर मुश्तमिल बिल्ड करना है, बॉडी पैराग्राफ कैसे बिल्ड करने हैं, हर बॉडी पैराग्राफ का स्टार्टिंग सेंटेंस कितने वर्ड्स का होना चाहिए, हर बॉडी पैराग्राफ का एंडिंग सेंटेंस कितने वर्ड्स का होना चाहिए, कितनी परसेंटेज एक पूरे ऐसे में पैसिव वॉइस की होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज एक ऐसे में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज इसमें हैवी वोकेबुलरी की होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज इसमें आउटलाइन की होनी चाहिए, ये सारी है फ्रेमवर्क में चीज़ें। उसके बाद है द मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग। मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग कम्स स्ट्रेट वे टू द स्ट्रक्चर, कि हाउ ब्यूटीफुल योर स्ट्रक्चर इज, हाउ ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग ग्रामर योर इज, how beautiful choice of the wording is there, how beautiful idiomatic expression you have used, how beautiful prosaic expression you have used, how beautiful syntax level is there, how many complex sentences you use, how many compound sentences you use, how many simple sentences you use in introduction, in the start of body paragraph, in the end of the conclusion, from beginning till the end. So mechanics of writing includes the whole of understanding of your writing stuff. जैसे कि मकान बनाया जाता है तो उसमें ईंटें कैसी होगी, कितना प्लस्तर लगेगा, कितने का मसाला बनेगा, कितना आयरन गर्डर्स यूज होंगे, ये मैकेनिक्स हैं। सारा स्ट्रक्चर मेकिंग, उनमें क्या रखेंगे मकान में आप उसमें आइडियाज़ कैसे डालेंगे, कंटेंट्स कैसे डालेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आगे चौथे नंबर पे मैंने व्हाट इज़ एन ऐसे इसलिए लिखा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, पार्ट्स ऑफ द पैराग्राफ, मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, और फिर आपको पता चलना चाहिए कि मुझे इस ऐसे में चाहिए क्या। अब ये भी डिपेंड करता है कि कितने किस्म के पैराग्राफ्स हैं, कितने किस्म के टॉपिक्स हैं वो आगे आ रहे हैं। पर्पस एंड टाइप्स ऑफ ऐसे ये भी हम डिस्कस करते हैं। पार्ट्स ऑफ द ऐसे के कितने पार्ट्स होते हैं ये भी हम डिस्कस करते हैं। थीसिस स्टेटमेंट को हम डिस्कस करते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि कवर हो जाए तो डिपेंड करता है कि आप CSS ऐसे पास करेंगे या नहीं। इसकी कवरेज पे आपका डिपेंड करता है क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन। फिर उस थीसिस स्टेटमेंट को प्रोसेस कैसे करना, और जब आप ऐसे लिख चुके तो उसमें आपने 5 से 10 मिनट अपना जो रनर अप टाइम रखना है, इसमें आपने असेस करना है यूजिंग APA स्टाइल। अगर आपको बिब्लियोग्राफी देनी है, अगर आपको रेफरेंसेस कोट करने हैं, तो फिर आपने किस तरह
ये बिब्लियोग्राफी जो है वो शो अप करनी है। आगे है सेंटेंस क्या होता है, ये हम आपके साथ जिक्र करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। इन सिंपल टर्म्स अ सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स, मिसाल के तौर पर वो खाना खाता है, ही ईट्स द फूड, ही जो है सब्जेक्ट है, ईट्स एंड फूड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट। ये आपको तब ज़रूरत पेश आएगी जब आप फिक्रा कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसमें आप एक से ज़्यादा क्लॉजेज और प्रेडिकेट्स यूज़ करेंगे। इसलिए आपके लिए ये मैंने इंफॉर्मेशन रखी है। सब्जेक्ट क्या होता है, इट इज़ व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो भी करेंगे कवर। व्हाट इज़ द प्रेडिकेट, इट इज़ व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, कि ये पूरा ऐसे कहा किस चीज़ के बारे में जा रहा है। उसके बाद यार आ रही है चीज़ बैकग्राउंड इन्फो। व्हाट इज़ अ पैराग्राफ, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अ पैराग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड सेंटेंसेज। कनेक्टेड, दिस इज व्हाट वी कॉल कोहेरेंस, दिस इज व्हाट वी कॉल सीक्वेंस, दिस इज व्हाट वी कॉल सीक्वेंशियल फ्लो, प्रोफिशिएंसी एंड प्रोफ्यूजनेस। हाउ ब्यूटीफुली यू स्पिल योर आइडिया। आप गुफ्तगू करते हुए किसी को कितने ब्यूटीफुली कन्विंस करते हैं। अब आपने ऐसे में बंदे को बोल के नहीं, बस लिख के कन्विंस करना है। दिस इज द बियर डिफरेंस, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस इन द पैराग्राफ, टॉपिक सेंटेंस। आपके ऐसे के हर पैराग्राफ का की सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस है, जो कि इंट्रोडक्शन, हर पैराग्राफ की पहली लाइन और हर पैराग्राफ की आखिरी लाइन, ये चीज़ें डिटरमिन करेंगे। उसके बाद है बैकग्राउंड इन्फो, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो उसके बाद हम चल रहे हैं, ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे के टॉपिक्स कितने किस्म के हो सकते हैं। आपको शाहीन की तरह आपने पलटना झपटना है अपने ब्रेन में, अपने माइंड में, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द टॉपिक। कभी हो सकता है आपको थोड़ा सा पोजेसिव होना पड़े, थोड़ा पैशनेट होना पड़े, एंथ्रॉल्ड होना पड़े, एक्यूबिलेंट होना पड़े, कहीं डिफेंसिव होना पड़े, कहीं एनालिटिकल होना पड़े, कहीं कंपैरेटिव होना पड़े। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द टॉपिक। नैरेटिव टॉपिक है जिसमें आपने पूरी कहानी बिल्ड करनी है। फॉर एग्जांपल वो पूछता है आपसे कि आप अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो उसका कश्मीर के ऊपर, रोल के ऊपर क्या समझते हैं। तो आपने एक बैकग्राउंड बिल्ड करना है, आपने एक नैरेटिव बिल्ड करना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सब्सटेंशिएट करने के लिए, स्क्रूटनाइज करने के लिए, सर्टिट्यूड के लिए, उसके अप्रूव के लिए। डिस्क्रिप्टिव टॉपिक क्या हुआ करते हैं, जिसमें सिर्फ नॉलेज मांगा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि इस्लाम सेफगार्ड्स द राइट्स ऑफ द वीमेन मोर देन एनी अदर रिलीजन, एक्सप्लेन। इस्लाम औरतों के हकूक़ की सबसे ज़्यादा जो है वो अक्कासी करता है। अब इसमें आपने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, डूज एंड डोंट्स, प्रॉज एंड कॉन्स डिस्कस नहीं करने, आपने नॉलेज में रह के अपना डिस्क्राइब कर देना। एक्सपोजिटरी, expository means which is related to the public issues, which is related to the issues in the society. Expository, जिसमें आपको कहा जाता है एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, ये नैरेटिव भी इसमें बिल्ड करना है और एक्सपोजिटरी भी रहना है, ठीक है। और एक्सपोजिटरी ये आपको इन डिटेल बताया जाएगा कि हाउ वी विल स्टार्ट कवरिंग द टॉपिक्स ऑफ एवरी ऐसे फॉर लास्ट 10 years। हम पिछले 10 साल पेपर्स के ऐसे के हर टॉपिक को, जो कि करीब 100 से ज़्यादा टॉपिक्स हो जाएंगे, उनमें आपको बताएंगे कि ये नैरेटिव टॉपिक है, ये डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, ये एक्सपोजिटरी टॉपिक है, ये रिफ्लेक्सिव टॉपिक है, ये इमेजिनरी टॉपिक है, इमेजिनेटिव टॉपिक है। इसमें आपने अपने घोड़े किस तरह दौड़ाने हैं, और हम यहाँ पे आपको टाइप करके बताएंगे कि आपने किस तरह अपना जो है वो राइटिंग स्टाइल मेंटेन करना है। तो ये है जनरल इंफॉर्मेशन कि हम किस तरह जो है टॉपिक सेंटेंस की मुताबिक अपने आप को पल्सेट करेंगे, हम झपटे पलटेंगे कैसे उस टॉपिक को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हुए। उसके बाद बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे। व्हाट शुड द स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे बी लाइक।
तो लिखा है एवरी एसे हैज़ अ बिगिनिंग, अ मिडल एंड एन एंड। ये पहली लाइन का मानी जो समझ जाए वो सही इंट्रोडक्शन बना लेगा, वो सही बॉडी पैराग्राफ बना लेगा और वो सही कंक्लूजन बना लेगा। जब ये तीन चीज़ें उसने सही बना ली, इट इज़ श्योर कि उसने ऐसे के वो समझ के अटेम्प्ट कर लिया। बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, इसको अरिस्टोटल अपनी ट्रेजेडी में कहता है मैग्नीट्यूड। जिस ऐसे में मैग्नीट्यूड, अपनी पोएटिक्स में वो कहता है कि राइटिंग में मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ड्रामा में मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अ प्रॉपर बिगिनिंग, वही नैरेटिव, कहानी बिल्डिंग। मिडल, कौन सी बात दरमियान में की जाए। एंड एंड, जो बंदा फसाहत व बलागत गुफ्तगू में रखता है, इट मीन्स कि वो फसाहत व बलागत अगर सेम रेटरिक यूज़ कर सकता है, अगर वो सेम कन्विंसिंग एनालिटिकल पावर यूज़ कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग अ बिगिनिंग, अ मिडल एंड एन एंड ऑफ एन एसे, तो मीन्स कि ही इज ऑन द सेफर एंड। इन अ 5 पैराग्राफ ऐसे, अब ये 5 पैराग्राफ एक टिपिकल स्टाइल है। ये आप 5 की जगह आप 10 भी कर सकते हैं, आप 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ओन राइटिंग स्टाइल। मैं ज़रा पैराग्राफ बड़े लिखने का आदी हूँ, इसलिए मैंने 5 लिखा है। तो मैं इन अ 5 पैराग्राफ ऐसे, द फर्स्ट पैराग्राफ इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन, और ये सबसे बड़ा पैराग्राफ होना चाहिए आपके ऐसे। Introduction is the most lengthy paragraph of your essay because you need to narrow down the explanation of your outline in it. आपने अपना नथार के पेश कर देना है कि आउटलाइन में हमने क्या क्या बयान किया, वो इंट्रोडक्शन में हम वर्बल प्रोजेक्ट फॉर्म में बता दें। नेक्स्ट 3 पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द essay। 3 की बजाय 4 कर लें, 5, 6, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ योर आउटलाइन। आपने जितनी आउटलाइन लेंथी बनाई, इसमें बॉडी पैराग्राफ लेंथी होते चले जाएंगे। द 5th एंड फाइनल पैराग्राफ इज कंक्लूजन। आखिरी पैराग्राफ ये भी करीबन जो है वो इंट्रोडक्शन के स्ट्रेंथ जितना ही होना चाहिए। दिस स्ट्रक्चर इज रिटन इन स्टोन, however दिस स्ट्रक्चर इज रिटन इन स्टोन। ये जो है स्टोन का मतलब क्या है कि आपने एक प्रॉपर जो है वो सिल क्रिएट करनी है, एक प्रॉपर स्टेयर केस बनाना है, एक प्रॉपर सीढ़ी बनानी है। Look at the newspaper or magazine, you'll rarely see an essay that follows this exact formula. On the other hand, it's a good place for beginners to start. When you feel more confident, you can get more creative and break free to the 5 paragraph formula. जब वो कहता है कि मैं ये यहाँ पे आपको बताने का ये चीज़ है, मकसद ये है कि दिस इज़ द बिगिनिंग ड्रिल, दिस इज़ द बिगिनिंग मॉक। पहले हमारे लेसन्स तो सारे आपकी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के होंगे, फिर जब हम नेक्स्ट हम शुरू करेंगे, आप खुद लिख के हमें चेक करवाया करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि अब आपको अपने आइडिया को किस तरह एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो जी बेटे, पर्पस क्या है देखिए। वाई आई एम राइटिंग दिस ऐसे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे की टॉपिक को डिपेंड करना है, ऐसे के टॉपिक को नैरो डाउन करना है, ऐसे के जो टॉपिक को आपने जो वो डी सिलेबलाइज करना है, आपने उसे डी फॉर्मुलेट करना है, उसे डी कर्टन करना है, उसे डी वेल करना है, आपने VEIL डी वेल करना है, उसके ऊपर से नकाब उतारना है। तो फिर वो डिपेंड करता है कि आपने वो टॉपिक सेंटेंस समझने के बाद क्या वो नैरेटिव्स ऐसे है, एक्सपोजिटरी है, लिटरेरी है, इमेजिनेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, आर्गुमेंटिव है, ये कुछ बातें हैं जो आपको कवर अप करनी होंगी। हम जब अपने ये मैं आज आपको एक आउटलाइन फ्रेमवर्क दे रहा हूँ कि हम अपने ऐसे के क्लासेस किस तरह कैरी ऑन करेंगे, किस किस तरह लेके चलेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि जब हम अपना अपनी ग्रामर और आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कंप्लीट कर चुके होंगे, उसके बाद हम जो है वो अलग अलग चीज़ों का फ्रेमवर्क बनाना शुरू करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं बॉडी ऑफ द ऐसे, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बॉडी में होता क्या है कि आपको जब आप सिस्टम मिल गया, एक कोहेरेंस और कोहिजन का
और सीक्वेंस का सिस्टम मिल गया कि सिंपली आपको करना ये है कि आपको ऐसे का टॉपिक समझना है, उसके अप्रोप्रिएट बेस्ट थीसिस स्टेटमेंट बनानी है, और उस थीसिस स्टेटमेंट की बेसिस पे आपने अपने बुलेट पॉइंट्स, जिसको आप आउटलाइन कहेंगे, वो आउटलाइन आपको बिल्डअप करनी है। आउटलाइन जब आप बिल्डअप कर चुके होंगे तो फिर आपने उन आउटलाइन को एक एक करके बॉडी पैराग्राफ में या दो दो करके एक एक बॉडी पैराग्राफ में स्मॉल बॉडी पैराग्राफ के रूप में आपने एक्सप्लेन करते जाना। ठीक है, आपने जो आउटलाइन बनाई, सब आउटलाइन बनाई, केस इन पॉइंट बनाया, रेफरेंसेस केस इन पॉइंट बनाया, कोटेशन ओरिएंटेड केस इन पॉइंट बनाया, जो भी आपने बनाया, आपने उसको जो है वो बॉडी पैराग्राफ में एक एक करके या दो दो करके एक पैराग्राफ में आपने अपनी आउटलाइन को एक्सप्लेनेशन में लाते जाना है। ठीक है, उसके बाद कुछ बातें हैं। ठीक है, ये कोहेरेंस का मैं इतना जो राग लाता हूँ, ये है क्या, कोहेरेंस कहते किसको है। ठीक है, पूरे ऐसे में अगर आपके कोहेरेंस नहीं है, सिस्टम नहीं है, फ्लो नहीं है, तो फिर आप मतलब चीज़ों को फ्रेमवर्क में, सीक्वेंस में नहीं ला पा रहे। अगर आप ला नहीं पा रहे तो इट मीन्स कि आपके अंदर कमांड नहीं है, आपके अंदर डेक्सटेरिटी नहीं है, आपके अंदर एडरॉइटनेस नहीं है, आपके अंदर इतनी अडेप्टनेस नहीं है, आपके अंदर इतनी एक्सपर्टीज नहीं है हाउ टू हैंडल योर आइडिया, हाउ टू प्लेस योर कंटेंट आइडिया, हाउ टू यूज वेरियस थिंग्स डिपेंडिंग ऑन दिस। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने बहुत नेसेसरीली जहन में रखनी है। रेलिवेंट क्रिटिसिज्म एंड काउंटर क्रिटिसिज्म, ये बहुत क्रूशल चीज़ है। आपको जजमेंटल भी नहीं होना, आपको स्वीपिंग स्टेटमेंट भी नहीं दिखलाने, आपने पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ का नाम भी कंटेम्प्रेरी जो अलाइव हैं कोशिश करें उनका नहीं यूज़ करें, रिलीजियस पर्सनैलिटी का नहीं यूज़ करें। ठीक है, जो वर्ल्ड रिनाउंड, वर्ल्ड ओन्ड, वर्ल्ड सेकेंडेड थिंग है उसको आप यूज़ करें। कंक्लूजन शुड नेवर इंट्रोड्यूस एनी न्यू मटीरियल, ये बात जो है कह लें कि जिस्ट है, मक्खन है, मक्खन। अब इसमें क्या कह रहा है वो कि कंक्लूजन, अब हमें क्या होता है कि हम अपने आप को थोड़ा सा साइंटिफिकली सोच पे नहीं उभार पाते। कैसे कि आपने 10 आउटलाइन बनाई, उन 10 आउटलाइन को आपने पूरे इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में हाईलाइट कर दिया, एक इमेज दे दिया, एक मिरर दे दिया कि भाई इस सेंटेंस के बारे में, इस ऐसे के बारे में मेरा ये व्यू है। उसके बाद आपने हर बॉडी पैराग्राफ में अपनी आउटलाइन को बता दिया। अब कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, हम ओवरलैप कर जाते हैं, या तो कुछ आइडियाज़ जो हमने इंट्रोडक्शन में दिए हैं वो मिस कर जाते हैं, या कुछ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर जाते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपका कंक्लूजन इज़ रीफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग, ठीक है, डाइवर्स फॉर्म ऑफ योर इंट्रोडक्शन, क्योंकि वो सब्सटेंशियल वे में होगा, इंट्रोडक्शन जो है वो इलेबोरेटिव वे में होगा। इंट्रोडक्शन में आप चीज़ें एलेबोरेट कर रहे हैं, कंक्लूजन में आप सब्सटेंशिएट कर रहे हैं, आपकी टोन सब्सटेंशिएटिव है कंक्लूजन में। उसके बाद पैराग्राफ शुड बी सेल्फ कंटेन्ड। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये कहना चाह रहा है सेल्फ कंटेन्ड पैराग्राफ पे जो अपने आप में फुलेस्ट है। पूरे ऐसे में से एक पैरा अलग कर लें तो वो पैराग्राफ अपने आप में पूरी सेंस रखता हो, अपने आप में फुलेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन हो, अपने आप में फुलेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, उसमें कोई आइडिया या बात फुली कन्वे कर दी गई हो। इसीलिए डिपेंड करता है कि आप पैराग्राफ बड़ा बनाएं या छोटा बनाएं, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है पैराग्राफ को सेल्फ कंटेन्ड बनाना। ईच पैराग्राफ शुड हैव लिंक विद रेफरेंस ऑफ द टॉपिक। ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बात किस तरह इम्पॉर्टेंट है कि हर पैराग्राफ जैसे कि किसी न किसी आउटलाइन के बुलेट पॉइंट को, सब आउटलाइन को, किसी केस इन पॉइंट को रेफर कर रहा है, तो अगला सिस्टमैटिक फ्लो होना चाहिए। ये नहीं कि आप पहले पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ में आप पहली आउटलाइन को जिक्र कर रहे हैं, दूसरे पैराग्राफ में आप चौथी आउटलाइन के ऊपर आ गए हैं, तीसरे में आप दूसरी पे, चौथे में आप छठी पे। ये कोहेरेंस नहीं है। आपको स्ट्रीम लाइन करनी होगी चीज़ें, आपको नैरो डाउन करनी होगी चीज़ें, अम्ब्रेला फॉर्म।
ऐसे शूडेंट गिव एग्जामिनर इंडिजेस्टन। इंडिजेस्टन का मतलब मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि हमारे यहाँ जैसे कि लैंग्वेज यूज़ का कॉन्सेप्ट होता है कि हम भरमार कर देते हैं डिफ़िकल्ट वर्डिंग, भरमार कर देते हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, और ढूंढ ढूंढ के कई स्टूडेंट्स ने इस बारे में तो इतना मैंने क्रेज़ देखा है कि वो डॉन अखबार में से चुन चुन के लफ्ज़ देख रहे होते हैं, ये ढूंढ रहे होते हैं, फ्रेजल वर्ब ढूंढ रहे होते हैं, जस्ट टू मेक देयर राइटिंग फ्लावरी। तो ये बात बड़ी सेंसिटिविटी ओरिएंटेड है, एस्थेटिक सेंस में यूज़ करना है। आपने अपनी लाइन को ब्यूटीफाई करना है, ना कि जो स्पाइस है, जो चिली है, जो स्पाइस है, वो ब्यूटी टेस्ट को बढ़ाना है, उसके पॉइजनस नहीं करना। तो इस लिहाज से ऐसे शुड नॉट गिव एग्जामिनर इंडिजेस्टन। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे आज इंट्रोडक्शन के तौर पर शेयर करनी थी कि ऐसे कैसा होना चाहिए, ऐसे हुआ क्या करता है। तो अभी ये मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, आप दोबारा ये ज्वाइन कीजिए। इसमें हम इंटरेक्शन करते हैं, इसमें हम गुफ्तो शरास करते हैं। इफ़ यू आर हैविंग एनी अदर प्रॉब्लम